Hello everyone, welcome back to my channel Maths Wale Inke Sir. In today's session we are going to learn about power sets and universal sets. So let us start the session. So the first part of this session is power set. So what is a power set? The collection of all subsets of set A is called as the power set of A. It is denoted by P of A and in P of A every element is a set. अब यहाँ पर क्या बोला गया है पावर सेट का मीनिंग? द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ सेट ए, right? The collection of all subsets of set A is called as the power set and it is denoted by P of A. और यहाँ पर एक और important point क्या बोला गया है? पावर सेट में सारे एलिमेंट्स कैसे रहेंगे? They will be sets. पावर सेट में सारे एलिमेंट्स कैसे रहेंगे? They will be sets. तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल के थ्रू इस डेफिनेशन को समझ सकते हो. सो इफ वी हैव अ सेट हैविंग एलिमेंट्स 1 and 2, तो इसके सबसेट्स कौन कौन से हो सकते हैं? अ सेट हैविंग एलिमेंट 1, अ सेट हैविंग एलिमेंट 2, अ सेट हैविंग एलिमेंट 1 and 2 एंड एन एम्प्टी सेट. करेक्ट? मैंने क्या बोला अभी? इसके सबसेट्स कौन कौन से हो सकते हैं? अ सेट हैविंग एलिमेंट 1, a set having element 2, a set having element 1 and 2, because we know that every set is a subset of itself, and an empty set because an empty set is a subset of every set, right? तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, subsets of A are a set having element 1, a set having element 2, the set itself because every set is a subset of itself, and an empty set because empty set is a subset of every set, right? So the power set can be written as a set having elements as empty set, a set having element 1, a set having element 2, a set having elements 1 and 2, right? So we say that this is a power set because it is having all the subsets of A, because it is having all the subsets of A. यहाँ पर दिख रहा है आपको. और मैंने जो पॉइंट बोला था एवरी एलिमेंट इज अ सेट, आपको यहाँ पर दिख रहा है एवरी एलिमेंट इज अ सेट. दिस इज एम्प्टी सेट, दिस इज अ सेट हैविंग एलिमेंट 1, दिस इज अ सेट हैविंग एलिमेंट 2 एंड दिस इज द सेट हैविंग एलिमेंट्स 1 and 2, राइट? समझ में आ गया ये. नेक्स्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट. अब यहाँ पर मैंने एक रिलेशनशिप लिखा हुआ है, number of subsets of a set is equal to 2 raised to n, where n is the number of elements of the set. अब इसे समझने के लिए आप एग्जांपल्स देख सकते हो. सो इफ वी हैव अ सेट A having elements 1 and 2, the subsets of this A are a set having element 1, a set having element 2, a set having element 1 and 2 and an empty set. कुछ देर पहले ही हमने ये देखा हुआ है, राइट? सो वी से दैट द नंबर ऑफ सबसेट्स आर 4. दिख रहा है आपको यहाँ पर एलिमेंट्स कितने हैं? 2. तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने आ रहे हैं? 2 raised to 2, दैट इज 4. ठीक है, अब एक और एग्जांपल देखते हैं. सो इफ वी हैव अ सेट B हैविंग एलिमेंट्स 1 2 3, सो व्हिच विल बी द सबसेट्स ऑफ B? सेट हैविंग एलिमेंट 1, सेट हैविंग एलिमेंट 2, सेट हैविंग एलिमेंट 3, set having elements 1 2, set having element 2 3, set having element 1 3 and set having elements 1 2 3 and an empty set. तो यहाँ से हमें कितने सबसेट्स मिल रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 and 8. So we can calculate the number of subsets by using the formula 2 raised to n, that is 2 raised to number of elements. So 2 raised to 3 is 8. तो समझ में आ रहा है ये. So from this, as we know that power set is the set of all subsets, we can write number of elements of the power set as number of subsets of a set and that is equal to 2 raised to n. समझ में आ गया ये पार्ट. नेक्स्ट, अब यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पावर सेट ऑफ A इफ सेट A इज एन एम्प्टी सेट. हमें यहाँ पर क्या पूछा है? इफ A is an empty set, how many elements are there in power set of A, right? तो अब A क्या है? It is an empty set. अब empty set है, इसका मतलब उसके अंदर कितने elements होते हैं? 0. empty set है, इसका मतलब उसके अंदर कितने elements होते हैं? 0. तो power set में कितने elements रहेंगे? 2 raised to 0, that means 1. करेक्ट? यहाँ पर अब आप देख सकते हो
as A is an empty set, so the number of elements in A is equal to 0. तो पावर सेट में कितने एलिमेंट्स रहेंगे? 2 raised to n, that is 2 raised to number of elements, and 2 raised to 0 is 1, right? So how many elements are there? Only one element is present in the power set, and that is the empty set, right? समझ में आ गया ये क्वेश्चन? नेक्स्ट, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स. अब हमें क्या करना है? गिवन सेट्स के सबसेट्स लिखना है. तो पहला सेट क्या है? अ सेट हैविंग एलिमेंट ए. तो इसके सबसेट्स क्या होंगे? द सेट इटसेल्फ एंड एन एम्प्टी सेट. करेक्ट? द सेट इटसेल्फ बिकॉज एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, and an empty set because empty set is a subset of every set. करेक्ट? अब यहाँ पर आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो. इसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं? सिर्फ एक एलिमेंट है, तो इसके सबसेट्स कितने होने चाहिए? 2 raised to 1, दैट मीन्स 2. तो यहाँ पे आ रहे हैं 2 सबसेट्स, राइट? उसके बाद सेकंड क्या दिया गया है? अ सेट हैविंग एलिमेंट्स ए एंड बी. तो इसके सबसेट्स कितने होंगे? 4, राइट? 2 raised to 2, 4 सबसेट आने चाहिए. तो आते हैं क्या? यस, अ सेट हैविंग एलिमेंट ए, अ सेट हैविंग एलिमेंट बी, द सेट इटसेल्फ एंड द एम्प्टी सेट. सो दीज आर द 4 सबसेट्स. यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हो. उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया गया है? अ सेट हैविंग एलिमेंट्स 1 2 3. तो इसके सबसेट्स कितने होने चाहिए? 8, करेक्ट? बिकॉज 2 raised to 3 इज 8. तो इसके 8 सबसेट कौन कौन से आ जाएंगे? अ सेट हैविंग एलिमेंट 1, a set having element 2, a set having element 3, a set having elements 1 and 2, a set having elements 2 and 3, a set having elements 1 and 3, a set having elements 1 2 3, and an empty set. Correct? So these are the 8 subsets of set containing elements 1 2 3. समझ में आ गया है? और लास्ट क्या बोला गया है? empty set. तो empty set के कितने सबसेट होते हैं? सिर्फ एक, right? Because empty set has how many elements? 0 elements. So 2 raised to 0 means 1. So subset of empty set is the set itself, right? समझ में आ गया ये क्वेश्चन? नेक्स्ट, लिस्ट ऑल द सबसेट्स ऑफ -1, 0 and 1. अब इसके भी कितने सबसेट्स होंगे? 8 सबसेट होंगे, करेक्ट? बिकॉज 2 raised to number of elements, that is 3. So 2 raised to 3 is 8. तो which will be the subsets? A set having element -1, a set having element 0, a set having element 1, a set having elements -1 0, a set having element 0 1, a set having elements -1 1, and a set having element -1 0 1, and an empty set. So these are the 8 subsets of the given set. Correct? The next part is universal set. So what do you mean by universal set? Universal set is the set which contains all the elements of other sets. Universal set क्या है? It is the set which contains all the elements of other sets, right? And it is usually denoted by the symbol capital U. आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो. तो एग्जाम्पल देखते हैं ये डेफिनेशन को समझने के लिए. तो इफ वी हैव सेट A having elements 1 2, set B having elements 3 4 5, and set C having elements 6 7 8 9, और हमें यहाँ पर यूनिवर्सल सेट फाइंड आउट करना है इसका. तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा? अ सेट हैविंग ऑल दीज एलिमेंट्स. तो ऑल दीज एलिमेंट्स मतलब यूनिवर्सल सेट में क्या क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट? समझ में आ गया है? इजी है. उसके बाद फॉर द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स the universal set can be a set of rational numbers, right? Because every integer is a rational number, correct? So we can say that the set of rational numbers is the universal set for set of all integers, right? Next, in human population studies, the universal set consists of all the people in the world. अगर हमें ह्यूमन पॉपुलेशन की स्टडी करना है तो उसका यूनिवर्सल सेट क्या रहेगा? तो इट विल कंसिस्ट ऑफ ऑल द पीपल लिविंग इन द वर्ल्ड, राइट? समझ में आ गया यूनिवर्सल सेट का मीनिंग? यूनिवर्सल सेट इज द सेट विच कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अदर सेट्स, राइट? ऑल द सेट्स आर सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट. आप यहाँ पर देख सकते हो. इफ आई कंसिडर द सेम एग्जाम्पल जो हमने ऊपर लिया है, तो आपको यहाँ पर दिख रहा है एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्सल सेट. सो वी कैन से दैट ए इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट.
उसके बाद every element of set B is a part of universal set, so we can say that B is a subset of universal set. उसके बाद every element of set C is a part of universal set, so we can say that C is the subset of universal set. समझ में आ गया ये? तो यहाँ पर यूनिवर्सल सेट पे बेस्ड एक क्वेश्चन दिया गया है. क्या है क्वेश्चन? गिवन द सेट्स A is equal to 135, B is equal to 246, C is equal to 0, 2, 4, 6, 8. Which of the following may be considered as the universal set for all the three sets A, B and C? Right? तो हमें क्या करना है? यहाँ पर चार ऑप्शंस दिए गए हैं. इन चार में से कौन सा सेट यूनिवर्सल सेट फॉर्म करेगा A, B और C के लिए, वो लिखना है. तो we know that the universal set is nothing but the set having all the elements of the other sets. राइट तो ए बी सी के लिए यूनिवर्सल सेट क्या बन जाएगा? अ सेट हैविंग एलिमेंट्स 1 3 5 2 4 6 6 0 8. राइट सारे एलिमेंट्स जो है ए बी सी के वो यूनिवर्सल सेट में चाहिए. और सेट के बेसिक्स में हमने सीखा है कि एलिमेंट्स रिपीट नहीं होने चाहिए. तो यहाँ पर भी 2 4 है, यहाँ पर भी 2 4 है, मैंने लेकिन 2 4 एक ही बार लिया है. ठीक है, समझ में आ रहा है ये? तो अभी फर्स्ट सेट चेक कर लेते हैं. तो फर्स्ट सेट में आपको क्या दिख रहा है? 8 ये एलिमेंट फर्स्ट सेट में नहीं है, इसका मतलब पहला वाला यूनिवर्सल सेट नहीं है. सेकंड इज एन एम्प्टी सेट, तो एम्प्टी सेट में तो कोई भी एलिमेंट नहीं है, सो इट इज नॉट एन यूनिवर्सल सेट. थर्ड में क्या दिख रहा है आपको? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 0 भी है और 8 भी है. तो ये सारे एलिमेंट्स इस सेट में प्रेजेंट है. देयरफॉर इट इज अ यूनिवर्सल सेट फॉर ए बी एंड सी. राइट उसके बाद अगर आप लास्ट सेट देखोगे तो लास्ट सेट में 0 ये एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है. देयरफॉर दिस डज नॉट फॉर्म एन यूनिवर्सल सेट. तो इसमें से कौन सा यूनिवर्सल सेट फॉर्म कर रहा है? सिर्फ थर्ड वाला यूनिवर्सल सेट फॉर्म कर रहा है, क्योंकि इसमें ये सारे एलिमेंट्स हैं. करेक्ट? कौन कौन से एलिमेंट्स है? 1 3 5 2 4 6 0 एंड 8. करेक्ट? समझ में आ गया ये क्वेश्चन? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट यूनिवर्सल सेट्स वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग? नंबर 1 द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स एंड नंबर 2 द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स. हमें क्या बताना है यहाँ पर? यूनिवर्सल सेट बताना है. किसके लिए बताना है? नंबर 1 सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स के लिए और नंबर 2 सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स के लिए. तो यूनिवर्सल सेट आप कौन सा प्रपोज करोगे? सेट ऑफ ट्रायंगल्स. राइट सिंपल. सेट ऑफ ट्रायंगल्स इज द यूनिवर्सल सेट फॉर सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स एज वेल एज सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, क्योंकि सेट ऑफ ट्रायंगल्स में सारे टाइप के ट्रायंगल्स कवर हो जाएंगे. Right? So set of all triangles is the universal set for both the set of right triangles and the set of isosceles triangles. समझ में आ गया? इजी है. अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी. थैंक यू.